एंड हियर हमने जो थोड़ा सा पिछले वाले लेक्चर को समराइज करते हैं कि we talked about phase contrast microscopy in which different types of types of material depending upon their density they appear in the different colors, lighter और darker color में appear हुआ करते हैं. और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि there is another microscope which is called interference microscope, and this microscope is actually responsible to create the three-dimensional image. And it depends upon इसमें हमारे पास जो इसका principle है, it depends upon the refractive index of the light, refractive index of the material. और इसमें हम light beam को two beams में separate करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी इन द नोमास्की डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में या DIC में. बट वी डू इसमें हम बस लाइट सोर्स से जब लाइट बीम एमिट होती है तो वी डिवाइड दैट लाइट बीम इनटू टू बीम्स. दोनों बीम जो हैं वो सैंपल या स्पेसिमेन में से पास थ्रू करती हैं. पास थ्रू करने के बाद दे कंबाइन नॉर्मली, एंड आफ्टर द combination they create the image of the specimen in the three-dimensional way. And actually three-dimensional image create हुआ कि हमारे पास ये एक एग्जांपल थी जिसमें हम देखते हैं कि प्रोटोजोन, एक प्रोटोजोन है this one which is parasinita which is attached with a green alga and that is Spongomorpha. तो ये इसमें अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बनी है हमारे पास DIC से, differential interference contrast microscopy, and this image that seems like three-dimensional image. This was about it. So next that we talked about, this is actually dark field microscope. Dark field microscope, as its name is indicating, it would be producing the field in the dark color. Field का मतलब है कि background. For example, अगर इस picture के अंदर आप देखते हैं, all this background that would be in the darker color. और जो next पे हमारा specimen है in front of that darker color that would appear brighter. So the dark field microscope जो है it would create the dark background and the bright objects. और इसका प्रिंसिपल जो है दैट इज द सेम प्रिंसिपल जो हम देखते हैं कि व्हेन एवर देयर इज अ डार्क रूम और उसमें एक होल से लाइट एंटर हो रही हो तो डार्क रूम के अंदर मौजूद जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं सारे इल्यूमिनेटेड नज़र आते हैं. तो बिल्कुल इसी तरह से इसका प्रिंसिपल है कि हमारे पास सारी की सारी फील्ड जो है वो डार्क होती है, एंड व्हेन एवर द लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट वुड बी visible as a bright object. And for what we do, Treponema pallidum, that is an organism. This is a bacteria basically, Treponema, जो कि normally इसकी proper staining नहीं होती, और इसको अगर staining proper नहीं होती तो इसका मतलब है कि इसको bright field microscope में देखना इंतहाई मुश्किल है. So that's why we prefer to use the dark field microscope to visualize the Treponema pallidum. This is an organism. तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि dark field microscope जो है it creates a dark background as compared to the brighter object. And example हमने ये पढ़ी है कि Treponema pallidum, that is the bacteria that is normally visualized under the dark field microscope because इसकी staining proper नहीं होती और ये bright field में हम इसको नहीं देख सकते. And when we talk about the image of the dark field microscope, this is there. इस image के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास filamentous alga है which is bound with the colonial alga that is Volvox. So this is actually the dark field microscopy. जिसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की. उसके बाद नेक्स्ट वन में चलते हैं. दिस इज द फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, this is the microscopic technique in which we stain or we dye. Yeah, in other words, you can say that we tag our specimen with a specific dye. I repeat my words. The fluorescence microscope is the type of microscopy in which we tag our specimen with a specific type of dye. जब हम उस specific type of dye को expose करेंगे, जब हम specific type of dye को expose करेंगे UV light के साथ, then this dye would emit the light in the visible range. ठीक है. मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ बैक्टीरियल सैंपल था, हमने उस बैक्टीरियल सैंपल को यूवी लाइट के साथ टैग किया और अब उस सैंपल को हमने रखा. नो नो या लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. सो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में हमारे पास एक स्पेसिमेन है
और स्पेसिमेन को हम टैग करेंगे फ्लोरेसेंट डाई के साथ। फ्लोरेसेंट डाई कोई भी हो सकती है, इसमें देयर आर डिफरेंट डाइज, CTC है, एक्रिड एंड ऑरेंज है। whenever we would attach the fluorescent dye with specimen, and after the exposure of UV light on this dye, what would happen, this dye is actually able to emit the light in the visible wavelength. और अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर जो आपके सामने है, कुछ विजिबल लाइट हमें नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल द येलो कलर. सो दे आर डिफरेंट tags available, different dyes available, actually, which are able to convert the light of different wavelengths. Just a minute, please. Wait. फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी या फ्लोरेसेंट डाइज की बात कर रहे थे, और डिफरेंट टाइप्स के जो डाइज हैं हमने उनका अभी डिस्कस करना है आगे, कि कितनी टाइप्स के जो डाइज हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं और डाइज के नाम क्या हैं, आगे हमारे पास आएगा. लेकिन यहाँ तक आपने सिर्फ ये याद रखना है कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में होता क्या है, हम सिंपली अपने सैम्पल को डाई के साथ टैग करते हैं, उसको यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं. जब डाई यूवी लाइट से एक्सपोज होती है तो अल्टीमेटली डाई क्या करती है कि वो लाइट एमिट करना स्टार्ट करती है इन द विजिबल रेंज. अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम इसको मूव करते हैं आगे, इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं, तो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स जो कि अभी तक हमने पढ़ी हैं, इनके मैकेनिज़म्स क्या हैं या इनके यूजेज क्या हैं. तो सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी वो थी लाइट माइक्रोस्कोप. नॉर्मली अब ये लाइट माइक्रोस्कोप के आगे डिफरेंट सब क्लासेस थी. ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, fluorescence microscope, confocal microscope. These are actually the types of the microscope, of light microscope. ये different types हैं. अब light microscope में principle सबका similar है कि हम light use करते हैं, light beam use करते हैं, वो pass करती है through the series of different lenses, और ultimately हमारे पास एक magnified image जो है वो create होता है. दूसरा ये है कि ये जो light microscope है, दिस इज़ लेस एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू कन्फोकल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसी वजह से इसका यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो लाइट माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हमारे पास आती है ब्राइट फील्ड, विच इज़ वेरी कॉमनली यूज इन लैब्स, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप. और इसमें हुआ क्या था, हमने देखा था सबसे पहले इसको कि इट एल्यूमिनेट्स द फील्ड ऑफ व्यू इवनली, पूरे फील्ड ऑफ व्यू को इवनली एल्यूमिनेट करती है, और अल्टीमेटली हम इस माइक्रोस्कोप के थ्रू बैक्टीरिया को विजुलाइज कर सकते हैं. हमने इसके मैग्नीफिकेशन पावर भी डिस्कस की थी और इसकी रिजॉल्विंग पावर भी डिस्कस की थी. इसके साथ साथ जो दूसरी टाइप की माइक्रोस्कोप यहाँ पे आएगी, दिस इज़ अ फेज कंट्रास्ट, जो हम पढ़ चुके हैं. तो फेज कंट्रास्ट जो है, इसमें हमने पढ़ा था कि इट एम्पलीफाइज द डिफरेंसेस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू क्रिएट द कंट्रास्ट. और इसमें हमारे पास कंट्रास्ट क्रिएट हुआ था फ्रॉम द बैकग्राउंड. इसमें डेंसर मटेरियल जो था वो हमें डार्कर नज़र आ रहा था, और जो लाइटर मटेरियल था वो हमें ब्राइट नज़र आ रहा था. और ये माइक्रोस्कोपी हम इस किस लिए करते थे, टू विजुलाइज द टू मेक द अनस्टेन्ड सेल्स विजिबल. क्योंकि हमने पढ़ा था कि व्हेन वी डू द स्टेनिंग, तो स्टेनिंग प्रोसीजर के दौरान ज़्यादातर सेल्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है. सो इफ़ वी वांट टू स्टडी द लाइव सेल्स, इन दैट केस हम स्टेनिंग प्रोसीजर से अवॉइड करना चाहेंगे, और हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है उसको कंसिडर करते हैं. ठीक है, दिस वाज अबाउट इट. नेक्स्ट जो हमने पढ़ी, हमने इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप पढ़ी, और इसमें हमने पढ़ा कि दो लाइट बीम जो हैं वो पास करती हैं स्पेसिमन में से, फिर वो कंबाइन होती हैं, रिकम्बाइन होती हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट हुआ करता है नॉर्मली. और इसकी हमने एग्जांपल पढ़ी DIC. उसके साथ साथ द लास्ट वन विच इज़ डार्क फील्ड, और डार्क फील्ड में हमने डिस्कस किया कि डार्क इसमें लाइट जो है दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द स्पेसिमन एट अ स्पेसिफिक एंगल, जिसके रिजल्ट में जो बैकग्राउंड है इट इज़ इन द डार्क और द ब्लैक कलर, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास ब्राइटर नज़र आते हैं. और इसके एग्जांपल अभी आज ही थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं. फिर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप पढ़ी, और इसमें हम क्या कहते हैं कि हमें अपने सैंपल को यूवी लाइट के साथ एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल जो हैं स्पेसिमन के अंदर वो लाइट इमिट करते हैं ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि विजिबल रेंज की. और अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो
हमें फ्लोरिश करता हुआ नज़र आता है, चमकता हुआ। इसके बाद बारी आएगी कन्फोकल माइक्रोस्कोप की। तो पहले कन्फोकल माइक्रोस्कोप जो है उसके बारे में एक वीडियो देखते हैं। हियर दिस इज़ द वीडियो। अच्छा, मैं ये वीडियो यहाँ पे रन करूँगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इस वीडियो का साउंड आपको आता है कि नहीं आता। आई होप अब तक आप लोगों ने देख ली है। अच्छा, इसमें हाँ, इसमें दो बातें हैं, ज़रा मैं इसको अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो इसमें सबसे पहले कन्फोकल माइक्रोस्कोपी जो है उसके स्टार्ट में, इस वीडियो के स्टार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने की इन्होंने कोशिश की है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मेरी स्लाइड पे अगर आप देखें तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें फ़ोटो ब्लीचिंग का ऑप्शन है। फ़ोटो ब्लीचिंग, एनीवन नोज व्हाट इज़ फ़ोटो ब्लीचिंग? ये बड़ा नॉर्मल सी टर्म है इंग्लिश की, फ़ोटो ब्लीचिंग। सर ब्लर हो जाती है। अच्छा, ब्लर, इसके अलावा कोई आइडिया? अच्छा देखें, कलर्स इतने डिफरेंशिएट नहीं हो रहे। हाँ, हुआ ये कि हमने फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी यूज़ की। उसमें अभी मैं आपको पीछे बता के आया हूँ कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में हमें अपने सैंपल को यूवी लाइट से एक्सपोज करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप का वो यूवी लाइट है। आपको पता है कि यूवी लाइट जो है दैट इज़ डेंजरस फॉर द लाइव सेल्स, इट मे क्रिएट म्यूटेशंस एंड सम अदर डैमेजेस टू द सेल्स। एक मसला है। दूसरी बात है फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीचिंग को मैं थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जब हम फ्लोरेसेंट डाइज को यूज़ करते हैं, यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं, तो फ्लोरेसेंट डाइज जो हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि विजिबल वेवलेंथ की लाइट ओमिट करती हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्लोरेसेंट डाइज की एबिलिटी कम होती जाती है लाइट को ओमिट करने की। इसी वजह से अगर हम इस पिक्चर में देखते हैं ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी, तो इसमें कलर्स या हमारे पास जो जो डिटेल्स हैं वो क्लियर नहीं नज़र आ रही। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास फ्लोरेसेंट डाइज थी, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रॉपर कलर ओमिट नहीं कर पा रहे। इस वजह से हम कहते हैं कि नाउ दिस डाइज हैज़ बीन फोटो ब्लीच्ड। सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक। इसी वजह से अगर आप यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन देखते हैं तो इस कंपैरिजन में हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा क्लियर कन्फोकल में नज़र आ रही हैं। फ्लोरेसेंस में हमारे पास डिटेल्स क्लियर नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो डाइज हमने यूज़ की थी फ्लोरेसेंट डाइज वो फोटो ब्लीच हो चुकी थी। तो ये दो ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के बजाय किसी दूसरी माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करने की तरफ इंक्लाइन हुए। एंड नाउ दिस इज़ द कन्फोकल स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या होता है कन्फोकल माइक्रोस्कोप में हमारे पास कि व्हाट वी डू अच्छा जी, अच्छा इसमें एक 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 और बात ज़रा यहाँ पे मुझे मैकेनिज़्म आपको समझाना है कि जब आपने यहाँ पे देखी वीडियो, तो इस वीडियो के अंदर ये आपको सैंपल स्पेसिमेन यहाँ पे पड़ा हुआ है नीचे। अब ये जो स्पेसिमेन नीचे है, दिस वन, दिस इज अ स्पेसिमेन। इट माइट पॉसिबल स्पेसिमेन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेन्स इन डिफरेंट पोजिशन टू द डिटेक्टर। अब यहाँ पे डिटेक्टर है, तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में और फिजिक्स के रूल को भी हम समझते हैं कि किसी भी स्पेसिमेन का डिटेक्टर से या लेंस से जो डिस्टेंस है वो मैटर करता है कि स्पेसिमेन की पिक्चर या इमेज कितनी फाइन जनरेट हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि लेंस से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे अपने स्पेसिमेन को रखते हैं। अगर स्पेसिफिक डिस्टेंस पे स्पेसिमेन नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास पिक्चर ब्लर क्रिएट होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल ये स्पेसिमेन है, यहाँ पे स्पेसिमेन के 3 पोर्शंस आपको दिखाए हुए हैं, दिस ब्लू स्टार, ग्रीन स्टार एंड दिस रेड स्टार। अब होगा क्या इसमें से सिर्फ हमने सपोज किया है कि जो ब्लू स्टार, जो ग्रीन स्टार है, दिस वन, दिस इज प्रेजेंट एट द पोजीशन विच इज सुटेबल फॉर द लेंस टू कंस्ट्रक्ट द इमेज। अब जो लाइट इस ग्रीन स्टार से निकल रही है वो प्रॉपर डिटेक्टर पे जा रही है, लेकिन जो लाइट आ रही है ब्लू स्टार से या रेड स्टार से, दिस इज नॉट फॉलिंग एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द डिटेक्टर। ये जो लाइट रेड और ब्लू है ये स्कैटर हो रही है।
इस लाइट स्कैटरिंग की वजह से हमारे पास जो इमेज जनरेट होता है वो इमेज ब्लर नज़र आता है हमें, ठीक है, ब्लर इमेज। सो दिस इज द स्टोरी कि हमें किसी ना किसी तरह से अब करना क्या है कि हमें कोशिश ये करनी है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट अटैच करना है कि डिटेक्टर तक सिर्फ ग्रीन लाइट यानी वो लाइट जो कि हमारे स्पेसिफिक एरिया से आ रही है वो पहुंचे, बाकी जो रेड और ब्लू लाइट्स हैं वो ना पहुंच सकें। तो ये इसलिए है कि हम हमारे पास जो ब्लर इमेज क्रिएट हो रहा है उसको हम किसी तरह से रिड्यूस कर सकें। गॉट इट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई यस सर। यहाँ तक बात क्लियर हुई है ना? हाँ चलें Yes, आगे। sir. अब चलते हैं आगे। वेन एवर वी मूव नेक्स्ट, और इसमें हमारे पास जो सिचुएशन आती है, यस इन दिस केस, अब जो हम कन्फोकल माइक्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं इसमें हमने क्या किया है कि इस डिटेक्टर से पहले एक पिन होल अटैच कर दिया। पिन होल, अब पिन होल क्या कर रहा है कि जो दूसरे प्लेन से दूसरे पोर्शन से आने वाली लाइट है उसको यहाँ पे रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, और सिर्फ स्पेसिफिक लाइट जो है वो पास करके डिटेक्टर तक जा रही है। हम क्या करेंगे कि पहले ग्रीन एरिया को विजुलाइज कर लेंगे डिटेक्टर के साथ, उसके बाद हम इस तरह से, और इस पिन को हम सिर्फ ब्लू या रेड इंस्टेड ऑफ ग्रीन, यानी कि बारी बारी हम पहले ग्रीन पोर्शन को देखेंगे, फिर ब्लू पोर्शन को देखेंगे, फिर रेड पोर्शन को देखेंगे। तो बारी बारी हम इसको इस पिन होल को मूव करेंगे और साथ ही साथ हम इस लेंस को मूव करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं इस केस में हमारे पास हम नज़र आता है कि सिर्फ ग्रीन लाइट जा रही है, और इसके साथ उसके ग्रीन लाइट वाले एरिया को स्कैन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम दूसरे एरिया को स्कैन करेंगे, यानी कि ब्लू या रेड वाले एरिया को स्कैन करेंगे। ठीक है, अब ये पॉसिबल कैसे है? ये एक लेआउट है, सिंपल सा लेआउट है कन्फोकल का। ये लेज़र है, डाइक्रोमेटिक मिरर है, ये दो मिरर ऐसे हैं जिनकी वजह से हम लाइट बीम को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हमने इस एरिया पे लाइट बीम फोकस की। आप सपोज कर लें कि ये एरिया था जो हमने पीछे भी पढ़ा है, ग्रीन वाला पोर्शन। तो पहले हमने इस ग्रीन पोर्शन पे लाइट फोकस की, इसको हमने एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद हमने इन दो मिरर्स को, ये जो दो मिरर्स हैं यहाँ पे, इन दो मिरर्स की पोजीशन को हमने चेंज किया, और पोजीशन चेंज करने के बाद हमने दूसरे एरिया को फोकस किया, यानी कि ब्लू पोर्शन या रेड पोर्शन। तो अब होगा क्या कि जब हम डिफरेंट एरियाज़ को डिफरेंट तरीके से स्कैन करते चले जाएंगे तो हमारे पास इस तरह की इमेज जो है वो कंप्यूटर में जनरेट हो जाएगी। वन इमेज ऑफ वन पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन। तो ये डिफरेंट इमेज जब हमारे पास कंप्यूटर में क्रिएट होंगी, फिर सॉफ्टवेयर इन सारी इमेज को कंबाइन करेगा और हमारे पास एक कंबाइंड पिक्चर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास पहले ब्लर पिक्चर आ रही थी, फोटो ब्लीचिंग का इशू आ रहा था, यूवी लाइट का इशू आ रहा था, हमने उस सारे से छुटकारा पा लिया। और अब हम हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो हमें अल्टीमेटली कंबाइन पिक्चर दे रहे हैं। और इसी वजह से हम इसको कहते हैं कन्फोकल लेज़र स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, कि हमने इसमें वन बाय वन हर पोर्शन को स्कैन किया है। स्कैन करने के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ किया, उसको कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद हम एक अल्टीमेटली फाइनल इमेज जो है उसको देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। और कन्फोकल माइक्रोस्कोपी 3D इमेजेस भी जनरेट करती है। दिस इज़ वेरी फाइन। और कन्फोकल माइक्रोस्कोपी जो है ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से बहुत फाइन हमारे पास स्ट्रक्चर्स देती है, फाइन इमेजेस क्रिएट करती है। तो दिस इज़ अबाउट इट। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। जाने से पहले कि यूवी लाइट का मैंने बताना है। ओके, यूवी लाइट में सिर्फ इतना सा है कि नॉर्मली व्हेन इन द केस ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप वी नीड टू यूज़ द यूवी लाइट, क्योंकि हमारे पास जो डाइज होती हैं हमने उनको एक्साइट करना होता है। तो उन डाइज के लिए जब यूवी लाइट का एक्सपोजर देते हैं तो यूवी लाइट जो है बेसिकली it may cause destruction of the cell, mutation in the cells. तो this is not beneficial for the live cells. तो इस वजह से यूवी लाइट को हम जब फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में अपने स्पेसिमन पे एक्सपोज करेंगे तो हमारे स्पेसिमन पे नेगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट करेगी। तो इस वजह से वी हैव टू अवॉइड फ्रॉम द यूवी लाइट। लेकिन चूंकि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में हम यूवी लाइट से अवॉइड कर नहीं सकते,
इस वजह से हमें हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के बजाय कन्फोकल की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई यूवी लाइट का प्रॉब्लम नहीं है, हम यूवी लाइट यूज़ ही नहीं करते, हम इसके अंदर लेज़र लाइट यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट इट। एनी अदर क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? ये समझ ना आई हो आप लोगों को, या कोई मसला मसाइल हो इसमें? एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क? नो? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो जो आपने कॉन्फोकल लेजर माइक्रोस्कोपी में बताया था कि जो 3 किस्म की लाइट रेज है वो एमिट हो रही हैं, तो उनको अलग अलग बाद में स्कैन करके तो वो इमेज प्रोड्यूस करेंगे। तो सर वो जो 11 to 12 इमेजेस आई हैं मतलब डिफरेंट पोर्शन से, तो मतलब हर एक में वो लाइट इमिट हुई थी, यानी वो 3 रेज नहीं है ज्यादा उससे? नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी अपने कन्फ्यूजन दूर करें। हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक पढ़ी है, ये वाली इमेज पढ़ी है जो आपको इसमें नज़र आ रही है। इसमें हमने पढ़ा है कि एक सैंपल है, ये सैंपल है नीचे, इस सैंपल के 3 पोर्शन हैं, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ठीक है, और हमने इन तीनों को सेपरेट सेपरेट पिन होल का यूज़ करके सेपरेट सेपरेट हमने इन तीनों को स्टडी किया। अब एक एग्जांपल हमने पढ़ी है यहाँ पे आके एंड पे, और इसमें हमने पढ़ा है कि हमने इंस्टेड ऑफ 3 पार्ट्स हमने 11 पार्ट्स स्टडी किए हैं। पहले वाले एग्जांपल में हमने 3 पार्ट्स देखे हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेसिमेन के 11 पार्ट्स थे। उन 11 के 11 पार्ट्स को हमने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने स्टडी किया है 3 पार्ट्स को सेपरेटली, यहाँ पे हमने 11 को सेपरेटली स्टडी किया है। ओके, गॉट इट? यस सर। Okay, good. So this was about it, and up to this. So next that we are going to start, this is electron microscope, or electron microscope जो है that is actually its principle is comparable to the light microscope. और आप थोड़ा सा अगर रिकॉल करें तो हमने कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ा था कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसका प्रिंसिपल उसमें क्या था कि पहले एक लाइट लैंप है, उसके बाद कंडेंसर लेंस हुआ करता था, फिर स्पेसिमन था, और यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसिमन की डायरेक्शन इस एरो के साथ दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस था, और ऑब्जेक्टिव लेंस इस स्पेसिमन की इमेज को क्रिएट करता है, इनलार्ज करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर आप देखें तो एरो का पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट हो गया। ठीक है, इसके बाद यही इमेज जो है ये आई पीस में से गुजरता है, मज़ीद इनलार्ज होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो फिर यहाँ पे रिवर्ट होती है, और नाउ दिस डायरेक्शन इज एग्जैक्टली एज द डायरेक्शन ऑफ द स्पेसिमन। तो ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल था जो कि हमने पढ़ा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ अ बिट सिमिलर एज कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप। बस यहाँ पे ये है कि चूँकि हम लाइट सोर्स यूज़ नहीं करते, वी आर यूजिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रही है? वी आर प्रोड्यूसिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट है, उसका कैथोड और एनोड है इंस्टेड ऑफ लैम्प। यहाँ पे लाइट लैम्प था, इधर इलेक्ट्रॉन गन है, दैट विल बी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन बीम। अब चूंकि यहाँ पे कंडेंसर लेंस हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको कंट्रोल करने के लिए लेंस मैग्नेट्स का यूज जो होगा यहाँ पे, लेंस मैग्नेट्स। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस के बजाय ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नेट आएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नेट के बाद हमारे पास आई पीस की जगह प्रोजेक्टर लेंस मैग्नेट आएगा, और उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली फोटोग्राफिक फिल्म आएगी। और ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है, दिस फोटोग्राफिक फिल्म इज एक्चुअली टू हियर टू विजुलाइज द इमेज। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेजेस हैं वो इस पर क्रिएट होती हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेजेस जो हैं ये ब्लैक एंड वाइट हुआ करती हैं, और हम इनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इन्हांस करके बेहतर कलर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अप टू दिस पॉइंट we have so far talked about that the mechanism or the principle is comparable to the light microscope। हम इसमें electromagnetic lenses यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज़ करते हैं, और एट द एंड फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज़ करते हैं जो कि मैग्नीफाइड इमेज को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो जो इमेज या जो माइक्रोग्राफ प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। यानी कि जो इमेज प्रोड्यूस होगी किसी भी सैंपल की, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। दैट कुड बी ब्लैक एंड वाइट इन कलर,
और इसको हम आर्टिफिशियली कलर्स के साथ इन्हांस करेंगे, अदरवाइज ये ब्लैक एंड वाइट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन जो है वो 100,000 टाइम यानी कि 1,00,000 गुना तक है। रिजॉल्विंग पावर जो है ये भी बहुत बेहतर है, एंड अप्रॉक्सीमेटली रिजॉल्विंग पावर जो है दिस इज अप टू 0.3 नैनोमीटर्स, and this resolving power is 1000-fold that is better than the electrons, that is better than the light microscope. अब इस रिजॉल्विंग पावर की थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे ये है कि अभी हमने पीछे पढ़ा था इसी चैप्टर के स्टार्ट में कि रिजॉल्विंग पावर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ लेंसेज एज वेल एज द वेवलेंथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट। अब चूंकि हम इसमें बीम ऑफ लाइट यूज़ नहीं कर रहे, हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है वो 1000 टाइम कम है लाइट से, ठीक है। और इसके कम होने की वजह से ये वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ कम होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बहुत बेहतर है। कितनी बेहतर है? 1000 टाइम्स बेहतर है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है दैट कैन बी यूज हियर, रिजॉल्विंग पावर इसकी। और हियर अच्छा, उसके बाद हमने इसका प्रिंसिपल डिस्कस किया, और प्रिंसिपल के साथ साथ अब थोड़े से इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो क्या हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चूँकि जो हम लाइट की बजाय यूज़ करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से जहाँ पे हम अपना स्पेसिमन रखते हैं और जहाँ पे हमें इसको विजुलाइज करना है, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं उस एरिया में वी नीड वैक्यूम, वी हैव टू क्रिएट द वैक्यूम। क्योंकि अगर एयर और एयर पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास होगा क्या कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जहाँ पे हम स्पेसिमन रखते हैं या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम रन करती है उस पोर्शन में वैक्यूम चैम्बर होता है। हम वहाँ पे सैंपल रखने के बाद वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद हम इलेक्ट्रॉन को रन करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बड़ी एक्सपेंसिव और ये बल्कि यूनिट है, बहुत बड़े यूनिट्स हैं, बड़े बड़े यूनिट्स हैं जिनको हम नॉर्मली, इनको रखने के लिए भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है, कूलिंग यूनिट्स चाहिए हैं, वैक्यूम चैम्बर्स चाहिए हैं, एक्सपेंसिव है काफ़ी। तो इस वजह से ये भी एक इनका ड्रॉबैक है। दूसरी बात यह है कि सैम्पल प्रिपरेशन काफ़ी रिगरस है। जो सैम्पल हमने माइक्रोस्कोप के नीचे विजुलाइज करना होता है उसको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसको प्रिपेयर करना एक अच्छा खासा मुश्किल काम है। प्रिपरेशन के लिए हमें उसको पास थ्रू करना है डिफरेंट फेजेस में से। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सैंपल जिसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे विजुअल देखना है उसकी प्रिपरेशन एक अच्छा खासा मुश्किल काम है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। सो दीज आर सम ड्रॉबैक्स दैट मे बी कंसिडर्ड इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और फिर अभी हम इसके एंड पे पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ड्रॉबैक्स हैं तो फिर हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड क्या है। अगर हम डिटेल्स ऑफ लाइफ को स्टडी करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद है, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इट। ओके, अच्छा, अब मुझे बताइए कि यहाँ तक, इस एक्सक्यूज मी पॉइंट सर, तक किसी को कोई मसला? जी जी जी। सर इसका ये जो फर्स्ट ड्रॉबैक आपने बताया ये रिपीट कर दें। हाँ, मैं फर्स्ट ड्रॉबैक इसका बता रहा हूँ आपको कि फर्स्ट ड्रॉबैक जो है दैट इज़ एक्चुअली लेंसेज एंड स्पेसिमेंस दे शुड बी इन द वैक्यूम। क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि हम इसमें विजिबल लाइट की बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये जब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मूव करेगी इट मे डिस्ट्रैक्ट, इट मे इंटरफेयर विद द पाथ, यानी एयर और एयर पार्टिकल जो हैं दे मे इंटरफेयर विद द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस टू यूज़ द वैक्यूम। तो इसके लिए स्पेसिफिक चैम्बर्स हैं जिनके अंदर अभी जो मैंने आपको जो दिखाए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, ये वाले, ये लेंसेज बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह ओपन नहीं होते, ये स्पेसिफिक वैक्यूम चैम्बर्स में हैं। हम अपना स्पेसिमन रखते हैं यहाँ पे, अपना स्पेसिमन रखने के बाद हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद फिर हम अपनी इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसको रन करते हैं। जब आप एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप देखते हैं तो वो तो नॉर्मल लैब के अंदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में पड़ी होती है। तो दिस इज़ एक्चुअली द स्टोरी। ओके, जी सर। चलें ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ तक कोई मसला मसाइल हो, आप लोगों को कोई इशू समझने में? नो सर।
ओके गुड। जी 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 हाँ जी 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 बोलें। एक्सक्यूज मी के बाद कोई बोला ही नहीं है। ओके एनीवेज। सर जो ये स्लाइड पे पिक्चर साथ में लगी रहती है, सर जी जी ओके जी मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट का माइक ऑन हो गया था और आई डोंट नो पीछे कुछ अनवांटेड वॉइसेस थी। एनीवेज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो मेजर टाइप्स हैं। One is called transmission electron microscope and number two is called scanning electron microscope. अब मुझे ये बताइए कि ये ट्रांसमिशन और स्कैनिंग के नाम पढ़ के आप लोगों के जहन में क्या आइडिया आता है कि what is actually the difference between these two types of microscope, transmission और scanning? कोई बता सकते हैं? Anyone? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या हो सकती है? ट्रांसमिशन स्कैनिंग ट्रांसमिशन में स्पेसिमेन में से ट्रांसमिट करते होंगे इलेक्ट्रॉन। ओके एंड नहीं, स्कैनिंग में इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चलता होगा और जो स्कैनिंग है उसमें मेरा ख्याल है मॉर्फोलॉजी पे ज्यादा फोकस होता होगा ऊपर ऊपर से। ख्याल तो आपका ठीक है लेकिन इतनी एग्जैक्ट आपका ख्याल ठीक कैसे है? कहीं गूगल तो नहीं काम कर गया? नहीं, ये पढ़ा हुआ है एफएससी में, मेरा ख्याल है ईयर 10 में, वही याद है। चलें ठीक, हाँ सर, एफएससी में ये नहीं मैट्रिक में था। पढ़ा हुआ। हाँ मैट्रिक में होगा। चलें ठीक है, इसकी डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास दो इमेजेस हैं। इसमें if this is the transmission electron microscope and this is the image of the scanning electron microscope. Here you can see that scanning electron microscope जो है that is giving us the details of the surface details दे रही है, और जो transmission है this is giving us the internal details of the structure. So in that case you can say that transmission electron microscope is a microscope in which electrons will transmit into the specimen and they would create a structure. They would create a intracellular or the structural details. जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है दिस विल गिव अस द डिटेल्स ऑफ द सरफेस। अब अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो स्पेसिमेन के अंदर में जब स्पेसिमेन के अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम पास कर रही है तो डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे कलर वेरिएशन आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो जो साइडें हैं दिस वन द पेरिफेरी ऑफ द बैक्टीरियल सेल दिस सीम्स मोर डार्क. This is due to the presence of darker material here क्योंकि we know that the periphery that is made up of cellular envelope जिसमें हमारे पास cellular membrane है, cell wall है, capsule है। जो central portion हमारे पास थोड़ा सा lighter नज़र आ रहा है this is actually the portion of cytoplasm. इसी तरह से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास ये जो पिक्चर आ रही है दिस वन इज आल्सो द बैक्टीरियल पिक्चर इमेज। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ट्रांसमिशन की पिक्चर ब्लैक एंड वाइट है, स्कैनिंग की पिक्चर थोड़ी सी ऑरेंजिश येलोइश कलर की है। बेसिकली ये भी ब्लैक एंड वाइट होती है लेकिन इसकी सॉफ्टवेयर के साथ कलर इन्हांसमेंट करके उन्होंने इसको कलर दे दिया, और ये जो आप ट्रांसमिशन की देख रहे हैं ये आप विदाउट कलर मॉडिफिकेशंस देख रहे हैं। So this is like that. This is actually the difference between the scanning and transmission electron microscope. अब इनको थोड़ा थोड़ा वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम एक्सक्यूज करते मी क्या सर, हैं? जी सर ट्रांसमिशन में भी हम उसको कलर दे सकते हैं? यस हम उसमें भी कलर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये इसलिए दूसरी वाली दिखाई है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमारे पास इमेज जनरेट किस तरह की हो रही है। ट्रांसमिशन फिर हम इलेक्ट्रॉन दोनों को कलर कर सकते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों बेसिक डिफरेंस कलर का नहीं है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये स्कैनिंग है अगर आप देखें तो ये सिर्फ सरफेस को स्कैन कर रही है, ये सेल की आउटर सरफेस दिखा रही है यहाँ पे ना,
हमें नहीं पता कि सेल के अंदर क्या है, किस जगह पे साइटोप्लाज्म है, कहाँ पे पेरिफेरी है, हमें नहीं पता चल रहा। ये वाली देखें अगर आप, तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द सेल डिफरेंट पोर्शन जो हैं वो डिफरेंट कलर के अपीयर हो रहे हैं, और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू द सैंपल। यहाँ पे ये वाली जो माइक्रोस्कोप है स्कैनिंग, ये सिर्फ सरफेस एरिया को स्कैन करके हमारे पास उसकी एक शेप की मॉर्फोलॉजी की इंफॉर्मेशन दे रही है कि इसकी शेप कैसी है, ठीक है। ये डिफरेंस है, कलर स्कीम का कोई डिफरेंस नहीं है। ओके सर। गुड, आगे चलते हैं जी। हमारे पास अगला है या you can say that transmission electron microscope is there to observe the fine details of the structure, और इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, वो स्पेसिमन से पास करती है, स्पेसिमन से पास करने के बाद वो स्कैटर होती है ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, और फिर उस डेंसिटी की बेसिस पे अगर मटेरियल डेंस था तो वो एरिया हमें डार्क नज़र आता है, अगर मटेरियल लाइट था तो वो एरिया हमें लाइट नजर आता है। दिस वाज द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसमें अगला जो थोड़ा सा पोर्शन है, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डे, दिस इज अबाउट द सैंपल प्रिपरेशन। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हमें सैंपल प्रिपेयर करना पड़ता है, बड़ा प्रॉपर सैंपल प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले सैंपल की हम कटिंग करते हैं, उसकी थिन सेक्शंस कट करते हैं, स्मॉल। उसके बाद इन स्मॉल सेक्शंस को we preserve the small section in the dehydrated solvents, organic solvents में हम इसको dehydrate करते हैं। organic solvent उसमें different types के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म etc। इस thin section को हम dehydrate करते हैं ताकि उसके अंदर जो water content है वो remove out हो जाए। फिर क्या करते हैं कि इन thin sections को plastic resins में, ये wax type resins होते हैं, plastic resins, प्लास्टिक रेजन्स में हम इन स्मॉल सेक्शंस को एम्बेड करते हैं, उसमें हम इसको कवर अप कर लेते हैं। इस एम्बेडिंग के बाद इन थिन सेक्शंस को हम थिन स्लाइसेस में कट करते हैं, मोर थिन स्लाइसेस। इन थिन स्लाइसेस की कटिंग के लिए हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोटॉम। तो इस कटिंग के लिए भी माइक्रोटॉम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज बीइंग यूज्ड हियर, माइक्रोटॉम, ठीक है। माइक्रोटॉम कटर के नाम से भी उसको कहते हैं। वो इतने फाइन स्लाइसेस कट करता है, फिर हम उन स्लाइसेस को लेके अपने माइक्रोस्कोप में स्टेन करते हैं, और स्टेन करने के बाद देखते हैं। तो स्टेनिंग का प्रोसीजर यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन ये स्टेनिंग जो है ये किसी भी डाई से नहीं होती, ये स्टेनिंग जो है ये होती है विद द हैवी मेटल्स। अब अगर आप यहाँ पे देखें बैक पे, तो इस केस में हमने सैंपल की कटिंग की, उसके स्लाइस कट किए, स्लाइस कट करने के बाद उसको हमने स्टेन किया मेटल के साथ, और मेटल स्टेनिंग से क्या हुआ कि जो डार्कर एरिया थे उसके साथ ज़्यादा मेटल अटैच हो गई, जो लाइटर एरिया थे उसके साथ मेटल जो है वो कम अटैच हुई है, जिसके रिजल्ट में अल्टीमेटली हमें मिला क्या कि जब हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो वो डेंसर एरियाज जो हमें डार्क नज़र आएंगे, और जो लाइटर एरियाज हैं वो हमें ब्राइट नज़र आएंगे। सो दिस वाज वेरी ब्रीफ सैंपल प्रिपरेशन मेथड। आप इसमें देखते हैं कि कितना इंटेंसिव है। इसमें हमने इसमें थिन सेक्शनिंग करनी है, डिहाइड्रेशन करनी है, एम्बेड उसको प्लास्टिक रेजन में एम्बेड करना है, फिर उसके थिन स्लाइसेस कट करने हैं, फिर हैवी मेटल से स्टेनिंग करनी है, उसके बाद हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के काबिल होगा ये। तो इसलिए ये सैंपल प्रिपरेशन का मेथड जो है, दिस इज आल्सो कंसिडर्ड अ ड्रॉबैक। और इस सारे प्रिपरेशन मेथड में जो बैक्टीरियल सेल है डेफिनेटली दैट वुड डाई। हम सेल को लाइव नहीं देख पाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। सो दिस इज एन अदर ड्रॉबैक। सो these drawbacks are basically there to restrict or to limit the use of electron microscope। तो अगर आप सैंपल प्रिपरेशन की बात करें तो आप फिंगर टिप्स पे आप बता सकते हैं कि हमने थिन सेक्शनिंग करनी है, डिहाइड्रेशन करनी है, देन एम्बेडेड इन द प्लास्टिक रेजन, फिर थिन स्लाइसेस कट करने हैं, उनके स्टेनिंग करनी है हैवी मेटल के साथ, और फिर हमने उसको अपने स्पेसिफिक चैम्बर में रखना है, वैक्यूम क्रिएट करना है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपने सैंपल की हमने एनालिसिस करना है। दिस इज़ अबाउट इट। उसके साथ साथ
अब डेफिनेटली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये सेल डिस्टॉर्शन कर देगी, सेल्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, या हमारे पास कुछ आर्टिफैक्ट्स भी आ सकते हैं। ये जो हम पूरे का पूरा हमने प्रिपरेशन मेथड किया है, इस प्रिपरेशन मेथड में हमारे पास कहीं पे भी एरर आ गया है या कहीं पे भी हमने कुछ आउट ऑफ द प्रोटोकॉल काम कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने जो कटिंग है सेक्शंस की वो प्रॉपर नहीं की, या हमने स्टेनिंग ज़्यादा कर दी है, तो इन सारे तरीक़ों के रिजल्ट में हमारे पास आर्टिफैक्ट्स यानी कि फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स। सो अ पर्सन शुड बी ट्रेन्ड बिफोर टेकिंग द samples and before preparing the samples of the electron microscope. So this is all about it. Okay, यहाँ तक समझ आ गई है जी आप लोगों को? यस सर। एक्सक्यूज मी Okay. सर, जी जी सर जो सैंपल की कटिंग है वो तो मतलब हम खुद से तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो इतने मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे, तो सर उनकी कटिंग के लिए मतलब कोई चीज होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ के कटिंग नहीं कर रहे होंगे। हमने क्या किया हुआ है कि यस ये वाला हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, देन वी हैव टुक अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, तो उसमें मिलियंस ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। फिर हम उनको लेते हैं, उनके स्लाइसेस कट करते हैं, तो एक स्लाइस के अंदर भी बेशुमार बैक्टीरिया आ सकते हैं, जस्ट लाइक दैट माइट पॉसिबल दिस इज पिक्चर ऑफ अ सिंगल स्लाइस। तो इसके अंदर भी हमारे पास बेशुमार बैक्टीरिया हैं, तो हम वन बाय वन तो उसको कट कर भी नहीं सकते। हम बहुत सारा उसके पॉपुलेशन लेंगे, मिलियंस ऑफ द सेल लेंगे, फिर उनकी कटिंग करेंगे, उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी ट्रांसमिशन के अंदर भी एक सेल नजर आ रहा है, तो इसमें अगर हम फील्ड को थोड़ा सा ब्रॉड करें तो बेशुमार सेल्स हैं। ये बड़ा जूम करके एक सेल पे फोकस किया हुआ है हमने। ओके, और इसके लिए जो स्पेशल कटर्स हैं, माइक्रोटॉम कटर्स, दे मेक इट पॉसिबल टू कट द थिन स्लाइसेस। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? और सर ये जो कटिंग है, ये मतलब यहाँ पे पॉइंट लिखा है ना, इमीडिएट इन अ प्लास्टिक रेजिन, तो मतलब उसके साथ ही करना है या उसमें से निकाल के बाद में हम करें? ये प्लास्टिक रेजन के साथ ही कटिंग होगी, प्लास्टिक रेजन के बगैर नहीं होती। आई होप कि आप लोग क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी या क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ेंगे कोई कोर्स, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ह्यूमन सैंपल्स हैं उनकी भी हम कटिंग करते हैं। हो सकता है आप में से कभी किसी ने हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स देखी हो। ह्यूमन हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भी हम कटिंग इसी तरह से करते हैं, प्लास्टिक रेजन्स के अंदर। मैं कोशिश करूँगा, शायद मेरे पास कुछ सैंपल्स पड़े हों जो कि प्लास्टिक रेजन में एम्बेडेड हों, ताकि मैं वो आपको दिखा सकूं कि ये किस तरह से करते हैं। आई विल ट्राई, शायद मेरे पास लैब में कुछ ऐसे सैंपल्स पड़े हों तो मैं आपको दिखाऊंगा। और प्लास्टिक रेजन के साथ ही कटिंग होती है, इसके बगैर कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन?